So students, the next topic after this conservation of momentum that I will take is rotation. तो rotational motion of rigid bodies क्या होता है? What is the rotational motion? एक आप देखते हो एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है रोलिंग। तो ऑल दिस फैक्टर्स जो कि रोटेशन की बात करते हैं, इन सब में फ़र्क क्या है या इनको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ऑल दैट आई विल डिस्कस। तो रिजिड बॉडीज़ की बात आ गई। रिजिड बॉडीज़ का मतलब पहले हम पॉइंट मास का जब मोशन सर्किल में देखते थे तो सर्कुलर मोशन था। अब जब रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लो रॉड है, ये डिस्क है या स्फीयर है, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी जिसमें ढेर सारे पॉइंट मासेस हों, उनका कलेक्शन कैसे मूव करता है, दैट वी डिफाइन इट एज रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा, रिजिड बॉडी। पहली बात तो हमको रिजिड बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर द रिजिड बॉडीज़, व्हाट दे आर ना। रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? तो रिजिड बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ सम point masses whose relative position does not change with any deforming force applied on it. उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे उसका शेप एंड साइज डजंट चेंज। मतलब हम कह सकते हैं कि द शेप एंड साइज डजंट चेंज, शेप एंड साइज डज नॉट चेंज। ऐसी बॉडी जिसका शेप और साइज चेंज ना हो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इवन आई एम सेइंग उसमें कितने भी पॉइंट मासेस हों, कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट मासेस, देयर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स दे आर आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये बॉडी जो होगी वो रिजिड बॉडी मानी जाएगी। तो वी से जनरली एनी सॉलिड बॉडी, सॉलिड है कोई भी, रॉड है, स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, दे आर टेकन एज रिजिड। तब फर्दर डिटेल में जैसे कभी ऐसा सोचो, वी टेक नारियल कोकोनट, that coconut filled with water, that coconut filled with the coconut water is a solid body or not? If I say, what you will see कि it is solid or not, क्योंकि from the outside it is appearing to be solid, but there is some liquid molecules inside it. So the coconut with water filled inside it, this coconut it has some boundary and some water molecules are inside this. So this coconut plus water inside, is it a solid or not? Even though from outside you can see perfectly it is solid, rigid, but this is not, ये solid नहीं है, because constituent molecules, the separation between the constituent molecules, say it is 1 and 2, the gap is R12, it is 1 and 3, it is R13, or 2 and 3, it is R23, they are not same. They can change. You take that coconut filled with water, you just shake it. All the water molecules, they will change their positions. So, it is not a perfect rigid body. Or you can say any hollow sphere. In any hollow sphere, you feel the sand particles inside it. Any hollow sphere filled with sand particles inside it, that will not be a solid body, rigid body, because once we shake it, the sand particles inside it, they can change their relative positions. I mean, all the constituent particles should not change their position, then only it will treated as a rigid body. तो ये एक definition आपको याद रखना है। तो once we are talking for the rigid bodies motion, which is collection of circular motion, तो उसमें हम लोग ये result देखेंगे।
तो पहली बात ये डेफिनेशन हो गया हमारा रिजिड बॉडी का. नाउ I will go for the rotational motion of rigid body. How does it happen? And what the factors we should keep in mind? अगली बात हम लोग जो करेंगे क्या? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, इसको भी देखा जाए. What is the rotational motion of rigid body? Rigid body can be of any shape, irregular shape also, या well defined that symmetrical shape also it can have. तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान देना कि rigid body का anything like that, कि ये suppose I say कि it is any rigid body and it has the axis through about which it is going to rotate with certain omega. All the constituent parts, say m1 mass is rotating in the circle of radius r1, any m2 mass is rotating in a circle of radius r2. Na? Say m1 will have the center c1, m2 will have the center c2, and all this part they are moving with the same angular velocity. Any third mass I put it here, say m3 is going with the next radius r3, any m4 mass is going with the other circle of radius r4. So what we find here, all the constituent masses in the rigid body, they are moving in the different circular path. Their centers are c1, c2, c3, c4 and so on. Up this is called the axis of rotation. This is called as axis of rotation. What you find here, all these centers C1, C2, C3 and all, they are lying on the axis of rotation. ना? तो what I will say, rigid body, in any rigid body, तो हम कह सकते हैं rotational motion of rigid body is collection of circular motions. It is a collection of circular motions such that the locus of centers of all circles form the axis of rotation. Locus of centers of all the circles, it will form the axis of rotation. आप देख सकते हैं all the centers of this circle they lie on the axis of rotation. तो ये आपका definition होगा. All the particles here they will have the same omega. A collection of circular motion such that this and circular motion with same omega. You can see it is happening with same omega. Angular velocity is same for all and they form like this. तो ये एक तरीका, एक approach आपका होगा. Now, if I say this term, if I am defining, now if I say the total kinetic energy of rotation of all the bodies, kinetic energy net, if I go for that, I will write it as half m1 v1 square plus half m2 v2 square. There are n number of particles plus half mn vn square I can write. All the constituent particles they will have the sum energy like this. Further I will write it as half m1 v1 is omega r1 square plus half m2 v2 is omega r2 का square plus half mn vn is omega rn का square ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. All these values. Further what I will write, it is as half, आप देख लो half is coming constant and further क्या हो गया omega square. ये value, this value is constant throughout. Half into omega square is common. So what you will write it as, it is m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square. This term I can write. So that is the kinetic energy net.
तो काइनेटिक एनर्जी नेट ऑफ द सिस्टम इज हाफ ओमेगा स्क्वायर m1r1 square, m2r2 square, mn_rn square, like this. mr square is the new parameter is coming here. What we call it as mr square? I is equal to mr square. This term is called as moment of inertia. This term is called moment of inertia of the bodies. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टर्म यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यू, इन एडिशन टू द दिस रिजिड बॉडीज पैरामीटर कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन. दिस टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो मैं क्या लिखूँगा इसको, इट इज़ हाफ ओमेगा स्क्वायर, इट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN. दिस वैल्यू आई विल राइट इट एज हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू I. So total moment of inertia I have written it to be I. So I is the net moment of inertia of the system. It is I1 plus I2 plus IN. So total moment of inertia, the term for the body is this. ये इनके मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस दोनों पे डिपेंड करता है. Here I have defined the term. Initially I was going to write this kinetic energy. So this kinetic energy initially it was the translational kinetic energy that I was going to write. Later onwards it is coming this. So this kinetic energy is rotational. So translational kinetic energy along the this concept it is going into the rotational kinetic energy. तो ट्रांसलेशन से काइनेटिक एनर्जी से रोटेशन में भी कन्वर्जन हमने देखा. इट इज इन द इक्विवेलेंट वे प्रोवाइडेड वी आर यूजिंग द अदर टर्म विद ओमेगा दैट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज रिटन विद द सिंबल कैपिटल आई. तो आपको यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल आएगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा. तो व्हाट आई हैव सीन हियर, हमने लीनियर काइनेटिक एनर्जी से एक नया पैटर्न निकाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. तो दिस टर्म आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या बताता है, बॉडी के मास के साथ उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी टू अपोज any change in its previous state of angular momentum. Any property by which the angular momentum tendency change is being opposed, that property is called moment of inertia. कि मतलब एंगुलर मोमेंटम को चेंज होने में रोकने की टेंडेंसी, आइदर इट इज़ बीइंग ब्रॉट फ्रॉम रेस्ट टू एंगुलर मोशन और फ्रॉम एंगुलर मोशन टू रेस्ट. दोनों चीज़ों में ये प्रॉपर्टी की जो बात आएगी तो इट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास आई हैव डिफाइंड आई, इट इज़ m into r square. What I mean to say, for single point mass, if it is here m1 mass at a distance r, and if it is under the rotational effects with some omega, I is mr square. R is what? This is the axis. R is the perpendicular distance. R is perpendicular distance of point mass from the axis of rotation, ये आपको याद रखना कि r is the perpendicular distance of point mass from axis of rotation. This distance is perpendicular, mr square. It depends on the two factors. I depends on the mass of the body as well as r square. Same mass, the distance is changing, the moment of inertia value will also change. तो दोनों फैक्टर पे आएगा. And I will have the unit. इसकी अगर यूनिट देखोगे तो नॉर्मल इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट एसोसिएटेड विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों रोल आएगा. एंड जनरली वी टेक इट एज स्केलर at your JEE and +2 level, but it is a
टेंसर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्केलर मानते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं पे आई नेट मुझे सम करना होगा तो आई विल से इट इज़ I1 प्लस I2 एंड IN। ये होगा फॉर डिस्क्रीट मासेस, फॉर discrete mass distribution it is this. I is generally the sum. Further I can write I net, it is integration of di factor, this also we do. This happens for continuous mass, distribution. In the case of continuous mass distribution we have इंटीग्रेशन, फॉर डिस्क्रीट मासेस इट इज़ दिस। एक तरीका, एक अप्रोच आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखना पड़ेगा। एंड दिस टर्म mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दिस टर्म आप ध्यान देना, mr स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी कहा जाता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास इज m इंटू एक्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास इज x स्क्वायर। तो पहला फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, दैट प्रॉपर्टी वी हैव सीन फॉर दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज, उसमें हमने इसको अप्लाई किया था। जब आर स्क्वायर वाली बात होती है तो ये सेकेंड मोमेंट ऑफ मास कहेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, एक पैटर्न हमको ध्यान में रखना है, करेक्ट। नाउ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने कहा कि सेम मास पे बढ़ जाता है तो इसका रोल कि रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट लाने में इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, करेक्ट। इसे मान लो मैं कहता हूँ कि देयर इज ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, यू अटैच विद ए थ्रेड, उसको रोटेट करो तो आप रोटेट कर लोगे। नाउ आई से द सेम 100 ग्राम मास स्टोन, यू अटैच इट विद ए थ्रेड ऑफ 10 मीटर्स, अब उसको पकड़ कर रोटेट करो, थोड़ा टफ होगा क्योंकि लेंथ उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, तो रोटेट करना इतना आसान नहीं है। इफ़ आई स्ट्रेच दैट लेंथ टू 100 मीटर्स थ्रेड द सेम मास, अब मैं कहूँ रोटेट कर, आप कर ही नहीं पाओगे, यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू कम इन टू रोटेशन द फुल लेंथ बिकॉज आर हैज इंक्रीज्ड। उसको और कोई मान लो कोई बहुत पावरफुल हनुमान जी जैसा कि वो खड़े हो गए पहाड़ पे, उसको पकड़ के घुमा दिया, देन इट कैन गो। तो देन देयर फ्रॉम द रेस्ट टू मोशन लाने में जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, या टेंडेंसी टू अपोजिशन क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अदर पॉजिटिव यूज ऑफ दिस थिंग इज कि ऑल द व्हील्स दे आर रोलिंग, तो व्हील जो रोल करता है दूर तक जाता है तो उसकी रोटेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। तो कोई बॉडी जब रोल करते हुए रोटेट कर रही है उसको रोकने में भी टाइम लगता है, इट अचानक कोई बॉडी रुक नहीं पाती है, दैट रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क। हम यहाँ पे अब प्राइमरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, हाउ इट इज़ फॉर 1 पॉइंट मास इट इज़ mr स्क्वायर, पर देयर कैन बी 2, 3, 4 पॉइंट मासेस, तो कैसे आएगा, तो वो रिजल्ट हम लोग करेंगे। I फॉर सर्टेन मास डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन टेक, सर्टेन मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई कर सकते हैं। इससे मान लो मैं कह दिया कि दिस इज एक्सिस और यहाँ पे एक मास 1 kg था, इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, this other mass of 2 kg, it's a distance of 2 meters. For this element is rotated about this axis, what is the net moment of inertia? So I will say it is m1 r1 square plus m2 into r2 square। m1 कितना होगा, 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 का स्क्वायर, दिस आई गेट। तो वैल्यू क्या आगे देखो, 2 to the 4 2 जा 8 plus 1 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दिस वैल्यू वी हैव। हमने इन 2 पॉइंट मासेस का, दे विल बी गोइंग इन डिफरेंट सर्कल्स, और इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकाल लिया, करेक्ट। नाउ आई विल शो यू विद द सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग, सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन वेरी। से मान लो मैं कहता हूँ देयर इज ए ट्रायंगल, this triangle, equilateral triangle, they have the masses 1, 2 and 3 kg, they are at the, ये मान लो median of triangular rotated with omega and side length is 2 meters, but masses are 2 kg, 1 kg and 3 kg, they are kept like this।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको देखना है। तो मैं क्या कहूँगा, तो हियर आई विल बी m1r1 स्क्वायर। तो देखो m1r1 स्क्वायर तो 1 इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसी पे आ गया। सेकेंड 1 kg मास, इसकी दूरी 1 मीटर, तो क्या हो गया प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, प्लस because about the median it is being rotated, this line is called median. So about the median line, if this rotation is happening, 2 into 1 square plus 3 into 1 square, this thing we can do. The total moment of inertia I happened is 0 plus 2 plus 3 ना, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हैपन। हमने वन axis which was the median, we have found that its moment of inertia, and this axis was passing through 1 kg mass and this line. If I change the orientation, if I change the axis like this, 2 kg पे ऐसे बदल दिया, तो axis is changed, तब आपका moment of inertia क्या होगा, बदल जाएगा। if मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ for this axis, if you see, तो ये axis आ गया तो इसका 0 हो गया, इस पर वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो क्या होगा 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा इफ द एक्सिस इज चेंजिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू इज चेंजिंग फॉर द सेम मास सिस्टम। तो डिस्टेंस उसका क्या कर गया, वेरी कर गया। ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे आर वेरिंग। तो ये हम लोग कर सकते, ट्रायंगल में इससे बात कही। अब सेम ट्रायंगल में ऐसे देखो, सपोज आई सी दिस आर द मासेस एंड दिस द एक्सिस, और ये ऐसे आ गया, मान लो अब एक्सिस ऐसे जा रहा है, दिस इज 1 kg मास, दिस इज 2 kg मास एंड दिस इज 3 kg मास, दे आर रोटेटिंग लाइक दिस। इसका साइड ऑफ द ट्रायंगल ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है और दिस लेंथ इज 2 मीटर। अब देखो सेम, नाउ दिस ट्रायंगल इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रायंगल इज रोटेटिंग, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इफ़ यू सी दैट इज 1 का 0 का 1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज 0 प्लस 8 प्लस इट इज़ 12, तो दिस इज 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। What you are seeing, the moment of inertia is changing the magnitude if the axis of rotation is changing. So this they are at 90 degree, axis of rotation and they are at 90 degree. Axis को बदल देने से moment of inertia की बात में फ़र्क आ जाएगा। The same way, if I say the triangle is like this and the axis is passing through its center of mass, rotating with omega, now they are attached like this. आप देखो 1 kg mass, it is 2 kg mass here and 3 kg mass is this side. Now how do we see? अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लेंथ आ गया फिर से 2 मीटर था, तो हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल दिस इज 2/3 ऑफ मीडियन, इट इज 2 sin 60 डिग्री, so √3/2, 2 got cancelled, what else you will see 2/√3, तो 2/√3 मीटर इज द R वैल्यू। अब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, तो 1 plus 2 plus 3 all the masses into r square, r square will be 2/√3 का स्क्वायर है, this is 6 into 4/3, तो it is 24/3, तो 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट पैटर्न्स दैट वी कैन सी, कैसे हम इस वैल्यू को चेक कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि हाउ द मासेस और अकॉर्डिंगली मास डिस्ट्रीब्यूशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ़र्क पड़ जाएगा। दिस कैन द शेप ऑफ ट्रायंगल, दिस कैन द शेप ऑफ स्क्वायर और एनी फिगर लाइक दैट। m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, ये वाली बात हमने बता दी, ठीक है, ये ध्यान देना। अब दिस वॉज द डिस्क्रीट मासेस। फर्दर व्हाट वी कैन हैव द कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम ऑल्सो वी हैव कंटिन्यूअस मास सिस्टम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, ऑल दैट वी कैन सी। जैसे मान लो इफ आई से कि दिस इज अ रॉड,
ये कोई रॉड है and it is being rotated about one end ऐसे with certain omega. This rod has mass m and length l. is rotated. अब इसमें जब आप करोगे तो मैं भी फार्मूला बताया था, I की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square. r is the perpendicular distance of point mass from axis of rotation. So what you will do, you will take some element here, say this dm mass, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज r. अब आप क्या करो, dm को r के फॉर्म में लिखो तो ये क्या हो गया, m बाई एल इंटू डी आर, इट इज dm. तो आपकी I की वैल्यू क्या होगी, dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. नाउ पुट द वैल्यू m बाई एल इंटू डी आर इंटू आर का स्क्वायर, इंटीग्रेट इट. नाउ व्हाट वी हैव, m बाई एल, इट इज द कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm. आप कर लो, जीरो से लेंथ ऑफ द रॉड l तक ले जाओ तो I की वैल्यू मिल जाएगी. तो इट इज m बाई एल, ये क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 3. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ आई सी हियर, I की वैल्यू क्या होगी, m एल स्क्वायर बाई 3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अरेंजमेंट इज एम एल स्क्वायर बाई 3. एम एल स्क्वायर बाई 3 जहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. एंड हाउ डू वी गेट इट अबाउट द एक्सिस. ये आप इसका आपने देखा था सेंटर ऑफ मास, इट वाज r बाई एल बाई 2. यहाँ पे क्या आ गया, एम एल स्क्वायर बाई 3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट इट्स वन एंड इज एम एल स्क्वायर बाई 3. अब देखो, अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, इफ आई चेंज द एक्सिस पोजिशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज. अब देखोगे, मान लो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से देखना है. सेम रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, रोटेटेड विद ओमेगा. अब करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सेम रॉड विद मास m, लेंथ l. अब आप बट रेशियो देखोगे, यहाँ से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. क्यों कम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ये क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गया, l बाई 2 हो गया. यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था, l था, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस. विल अगेन इंटीग्रेट एंड वी कैन सी द प्रोजेक्ट. तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे, इफ आई अगेन टेक द एलिमेंट, इट इज dm, द डिस्टेंस इज r, दिस इज dr लेंथ जिसमें प्रेजेंट है. आप एक पार्ट में यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करके डबल कर दो, यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I की वैल्यू क्या होगी, dm इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करो जीरो से l बाई 2 तक, उसको डबल कर दो, यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब चेक करिए आप, फिर से dm की वैल्यू सेम पैटर्न वी हैव, dm इज मास अपॉन लेंथ इंटू dr. दिस थिंग वी कैन डू. तो आप देखो क्या करोगे आप, dm इज मास अपॉन लेंथ इंटू dr इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो जीरो से l बाई 2 तक, उसका डबल कर दो. तो अब देखिए क्या आ गया, m बाई एल, आर स्क्वायर dr का r क्यूब बाई 3, जीरो से l बाई 2 इंटू 2. तो ये क्या हो गया, देखो m, और ये हो गया l क्यूब बाई 8 इंटू 3 इंटू 2 ना, और ये l ये भी आ गया, पहले वाला जो बचा हुआ था. तो हैंस आई विल से इट एट m l स्क्वायर बाई 12. तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एम एल स्क्वायर बाई 12. पहले वाला कितना था, एम एल स्क्वायर बाई 3. तो ये वैल्यू कम आ गई. क्यों आ गई, और मैंने बस एक पार्ट का निकाला, वन ऑफ द पार्ट यू कैन डू, एंड सेकेंड पार्ट सेम वैल्यू को, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 इज मल्टीप्लाइड फॉर 2 साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड. तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, तो ये कर दिया. हम ये भी कर सकते थे, द इंटीग्रेशन कुड हैव बीन माइनस l बाई 2 टू प्लस l बाई 2, उससे भी आ जाता, दैट वाज द वे. तो किसी भी तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास की अप्रोच यहाँ पर देखी. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है फॉर द सेंटर ऑफ मास. फॉर द रॉड हमने दो तरीके से चेक कर लिया. इफ द सेम रॉड इज बीइंग रोटेटेड लाइक दिस, आप देखिए रॉड को मैं ऐसे लिया, लेंथ l, मास m, एंगल थीटा, एंड इट्स रोटेटेड टू टेक द शेप ऑफ कोन. कोन शेप में जा रहा है, ऐसे रोटेट कर जा रहा है, तो भी हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं. दिस वे वी कैन सी. ठीक है जी, यहाँ पे देखो, नाउ दिस इज बीइंग रोटेट लाइक दिस. अब ये एंगल थीटा पे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दिस वे ऑल्सो वी कैन सी.
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रॉड का मान लो यहाँ पे कोई डी एम मास लेता हूँ, दिस डी एम मास, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज एक्स, एक्सटेंशन इज डी एक्स, ऐसे ले लो। अब दिस विल फॉर्म अ सर्किल लाइक दिस, तो ये सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना सकते हो आप। अगर एक्स मान लिया तो दिस एंगल इज थीटा, तो रेडियस इज एक्स साइन थीटा, but theta here is constant, so I will write it as di, di is dm into x sin theta chi square, this I will integrate, I value I will get dm is m by l into dx into x square sin square theta का integration we can do. If I do it, तो a moment of inertia I will be s, देखिएगा m by l इंटू साइन थीटा, इट इज़ कमिंग आउट, और ये जो टर्म आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू एल, हैंस आई विल गेट इट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा इज द इंटीग्रेशन वैल्यू. तो फॉर द सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any rod rotating about the axis at an angle theta, it is this. अब आप इसी में देख सकते हो, फॉर इफ आई से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका वो रॉड वाला केस आ गया, तो दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3, ये आ गया आपके पास आई की वैल्यू. तब रॉड क्या हो गया, इसका थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया. ये चीज़ तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं. तो यू कैन सी इट इज ए जनरलाइज केस ना, तो रिजल्ट आपको ऐसे मिल सकता है. इसी में अदर केस आई कैन डू कि ये कोई रॉड ले लो एंड इट इज़ बीइंग रोटेटेड अबाउट द एक्सिस लाइक दिस, ये ऐसे शेप में जाके फिर से ये मोमेंट ऑफ नेचर कुछ क्रिएट कर सकता है. ऐसे घुमा दिया जाए एट एन एंगल थीटा अबाउट द मिड पॉइंट, सी अब टोटल मास इज एम एंड लेंथ इज एल, ऐसे रोटेट कराया गया. इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर पैटर्न पे बना सकते हो आप. एनीबडी, एनी केसेस? मिड पॉइंट से गया थीटा से, वैसे सोच लीजिए. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. सीधे सेंटर ऑफ मास से वैल्यू आ गई, ये बन सकता है. वाई सो बिकॉज यही थीटा 90 डिग्री कर दीजिए तो आपका ये वाला रॉड आ गया, तो रिजल्ट भी आपका बन जाएगा. फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इट इज दिस केस, आई की वैल्यू क्या हो गई, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 90 डिग्री. तो दिस फार्मूला हैपेंड, यहाँ पर हो गया, ये वाली बात बता दी. तो थीटा का फंक्शन या 90 डिग्री है, तो एक मैथमेटिक्स का अप्रोच यहाँ पे आता है कि हम कैसे वी कैन अप्लाई दैट मैथ्स, एम आर स्क्वायर डी एम एलिमेंट कैसे लेना है एंड ऑल दैट थिंग्स वी कैन डू. तो रॉड वाले केस में भी हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया. आई थिंक इट इज़ क्लियर. यू कैन सी, प्लीज़ चेक कि हम कैसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख पा रहे हैं, रिजल्ट कैसे फॉर्म हो पा रहा है. तो दिस थिंग वी हैव. अब ऐसे ही व्हाट आई हैव डन फॉर रॉड, अदर केसेस कैन ऑल्सो बी सीन. इन अदर केसेस व्हाट कैन आई डू, जैसे मान लीजिए रिंग का लेता हूँ मैं, रिंग, any ring is rotated about its axis passing through the center perpendicular to the plane, radius of the ring is r and mass is m, rotating with certain omega, it is a ring. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो आप देखो रिंग में ऑल द मासेस दे आर एट द बाउंड्री at equal distance from the axis, all the masses dm are at equal distance. तो di the moment of inertia that will be dm into r square and I will integrate it. आपको I की वैल्यू आ गई. all the distances are same, r square I can take it out, integration of dm. तो वैल्यू क्या हो गई, r square integration of dm that is m, hence I will be mr square. तो moment of inertia in the case of ring is mr square because all the masses are at equal distance. तो रिंग का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बिकॉज ऑल दिस मासेस दे आर एट बाउंड्री और इक्वल डिस्टेंस पर. अगर मान लो हाफ रिंग कुछ होता है ऐसा, उसको भी मैं रोटेट करता है ऐसे अबाउट द एक्सिस, हैड इट बीन हाफ रिंग,
ये पार्ट एब्सेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस इज द हाफ रिंग, हाफ रिंग, रेडियस इज अगेन आर, रोटेटिंग विद अबाउट द एक्सिस विद ओमेगा। अब देखो हाफ रिंग में मास पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा ही है, टोटल मास इसका m ही है, जैसा फुल रिंग का था वही पैटर्न रहेगा, बस I की वैल्यू यहाँ भी क्या जाएगी mr स्क्वायर, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इसे सेंटर ऑफ मास में तो हो गया था, लेकिन रिंग में ऐसा चेंज नहीं आ रहा। हाफ रिंग या फुल रिंग हो, अगर मास पैटर्न सेम है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। ये भी एक तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखने का। रिंग की बात मैंने बता दी, करेक्ट, yes, but with the change of axis and orientation they can change, but normal ये रिजल्ट जो था आपका ऐसे बन गया। now it was the case of linear bodies में हमने point mass and this rod and ring I have taken। अब we can extend the same thing for the two dimensional, this I for two dimensional माने mass in area, two dimensional केसेस ऑल्सो आई कैन टेक। तो टू डायमेंशन केसेस में कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, तो मास इज इन एरिया, व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया देन हाउ इट हैपेंस, ये चीज़ में हम लोग देख सकते हैं, मास को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। तो वो केसेस भी आ सकते हैं और उसके एलिमेंट को हमको गेस करना पड़ेगा एंड वी कैन सी द रिजल्ट। तो लेट अस सी, पहला मैं इसमें एक केस लूँगा रेक्टेंगुलर प्लेट का। ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ L and width B is rotated about its one end with certain omega. This rectangular plate. The rectangular plate is collection of so many rods. तो rods का collection होगा तो कोई एक dm मास का rod ले लो, ये rod का मास dm and length L. You can see this rectangular plate is a collection of rectangular plate. If you see, it will be collection of so many rods ना, all these rods are here like this। तो मैं किसी भी और all the rods they are identical in shape and size, pattern we can see it। So di I can see it is dm into L square by 3। Simply I will integrate, it is a rectangular plate, so dm into L square by 3, I L square by 3 is common, integration of dm, तो आप देखो L square by 3 integration of dm is m, simple it is this। तो moment of inertia of this rectangular plate for this axis is ml square by 3, करेक्ट। अब मान लो इस एक्सिस का पैटर्न मैं बदल देता हूँ, suppose I say now the this and the axis I am changing, it is like this, now it is rotating this way, the same disk is being rotated like this with certain omega and the mass of the disk is m and you can see the length is L and width is B. Only this axis rotation orientation is changed. Initially it was for the B line parallel, now it is L line parallel to this. Here the elements you will take like this, the rod pattern will change, this is the rod pattern of mass dm and length is L. So corresponding the moment of inertia di, that you will write dm and this length is B, now this length is B into B square by 3, you can integrate and get the results. Here if I see the moment of inertia I will be, just see B square by 3 into dm, we can integrate, it is B square by 3, एक टर्म क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, इट इज m b square by 3, it is the moment of inertia of the disk for this shape। if the orientation of axis is changing the moment of inertia will change। तो एक तरीका, एक अप्रोच हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ये भी आप दे सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने अलग अलग पैटर्न पे कैसे देख पा रहे हैं और उसकी इंटीग्रेशन वाली टेंडेंसी भी कैसे बन जा रही। तो रिंग और डिस्क दो बातें हमने यहाँ, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट आई हैव डन, करेक्ट। अब ऐसे ही
जैसे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर दी, रिंग की बात कर दी, यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, आई ऑफ डिस्क about an axis passing through center of mass and perpendicular to its plane ना। ये चीज़ देखनी है। अब देखिए हमारे पास ये डिस्क ऐसा है, disk is rotated about the center of mass with certain omega, radius of the disk is r and mass is m, disk is perpendicular to the plane। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, disk is a collection of rings, I can take any ring of radius x and thickness dx। अब यहाँ पे मास को हम एरिया में ले जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो डी एम मास ऑफ द डिस्क, तो डी एम मास ऑफ द डिस्क हम लोग क्या लेंगे, इट इज मास अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा एरिया ऑफ द रिंग, तो वो क्या होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई एक्स, एक्सटेंशन इज डी एक्स इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। दिस थिंग आई कैन डू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई किसी रिंग का क्या होगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। वाई सो, बिकॉज इस रिंग का रेडियस क्या हो गया x, इसका मास dm, डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट फिक्स, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा I की वैल्यू। अब dm क्या हो गया, दिस मास अपॉन एरिया इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, विल गेट इट। तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एलिमेंट कैसे लिया गया ये इंपॉर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पर वेरिएबल में डाल दिया। नाउ यू सी आई की वैल्यू क्या आ गई आपको यहाँ पे, इफ आई से आई की वैल्यू क्या आ गई, देखो आप एम पाई गॉट कैंसिल्ड ना, तो क्या होगा एम बाई आर स्क्वायर, दिस इज कॉमन, पाई गॉट कैंसिल्ड। अब क्या बच जाता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, ये आ गया 0 टू आर, यू कैन इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो रिजल्ट और 2 भी था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, दिस 2 इज देयर। फर्दर देखो तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 2m बाई आर स्क्वायर, दिस इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर 4 बाई 4, 0 टू आर, हैंस द वैल्यू आई एस एम आर स्क्वायर बाई 2, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज दिस, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और रिजल्ट ऐसे कैसे आ गया। तो डिस्क वाले में आप देख रहे हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 आया अबाउट दिस एक्सिस। हाँ, इफ द एक्सिस इज चेंजिंग द पैटर्न कैन चेंज, बट येट एक तरीका फॉर द डिस्क के लिए और रेक्टेंगुलर प्लेट्स के लिए, इवन द स्क्वायर प्लेट होगा तो भी आप कर लोगे। तो लेकिन हाँ, एक ओरिएंटेशन कैसे आ रहा है फॉर द मासेस, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, दैट वी हैव टू सी, कि इंटीग्रेशन को हम कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। मास अपॉन एरिया वाली बात आ गई, तो रिंग में आ गया, और ये डिस्क में भी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो 2 डायमेंशन मास हो सकते हैं, और सम टाइम द मास कैन बी इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन मास में ही होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लीनियर मास में जब डी एम एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है, एम बाई एल इंटू डी एक्स। 2 डायमेंशन मास एरिया, एरियल मास में जब हम जाएंगे, हियर द डी एम इज मास अपॉन एरिया इंटू छोटा एरिया डी ए। इसी से वॉल्यूम मास में जब जाते हैं हम लोग, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे हमारा जो डी एम एलिमेंट आएगा दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम इंटू छोटा वॉल्यूम। तो दिस पैटर्न वी कैन यूज़, उससे हमारे सारे फैक्टर्स बन जाते हैं।
एलिमेंट कैसा है, वो एलिमेंट को आप थोड़ा ध्यान देना। एलिमेंट कैन बी पॉइंट मास, लीनियर, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। ये एक पैटर्न आपको ध्यान देना है। अब इन्वॉल्विंग दीज थिंग्स, तो मैं कह दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडीज, 3 डायमेंशन में क्यूब भी हो सकता था ना, इट कैन बी ए क्यूब ऑल्सो, इट कैन बी अदर शेप ऑल्सो। इन सारे शेप में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम कैसे देखना है, दैट थिंग वी कैन डू। तो इसमें एक केस आ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज द सॉलिड स्फीयर? तो सॉलिड स्फीयर अगर आप देखोगे और फुल स्फीयर लेंगे तो कलेक्शन ऑफ डिस्क, कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्क, हॉरिजॉन्टल डिस्क का कलेक्शन होगा और वेरिंग साइज, साइज वेरी करेगा, साइज विल वेरी। हालांकि उसका पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अगर मुझे डिस्क का करना है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर जस्ट सी, मान लो हम कहते हैं ये कोई डिस्क है, स्फीयर है, इसको रोटेट कर रहा हूँ विद सर्टेन ओमेगा, स्फीयर हैज़ गॉट द रेडियस आर एंड मास एम। इसका डेंसिटी मैं मान सकता हूँ क्या है, कांस्टेंट है, डेंसिटी कैन रिमेन कांस्टेंट, करेक्ट। तो ये पैटर्न हम लोग यहाँ पे 3D बॉडी का भी ले सकते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जस्ट सी, ये इसका प्लेनर ये मिल गया आपको, ऐसे प्लेन है। तो आप देखो अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर अबाउट द इक्वेटोरियल प्लेन, द मास डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सिमेट्रिकल। मैं यहाँ पे कोई एक डिस्क ऐसे ले सकता हूँ ऑफ द रेडियस एक्स, और इसका एक्सटेंशन ले लो डी एक्स का, सॉरी डी वाई, क्योंकि हम मैं इसको यहाँ पे वाई मानूंगा। और वॉल्यूम में अगर आप देखिएगा तो डिस्क है, तो डिस्क का छोटा जो वॉल्यूम होगा दिस इज डी वाई, हम इसको क्या मान लेंगे डी वाई, छोटा एलिमेंट डी वाई। और पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन यहाँ पे वाई मान लूँगा, ये डी वाई है, रेडियस इज एक्स। तो डी एम मास ऑफ दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम इंटू छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, नॉट डी एक्स, इट इज डी वाई। डी एक्स करोगे तो उधर सी लाइन चलाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट, नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, डी वाई लिया है, नॉट डी एक्स लिया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ आई, तो वो क्या हो गया डी एम मास ना। और आपने अभी डिस्क का देखा था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम स्क्वायर बाई 2। अब आप देखिएगा तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। कलेक्शन ऑफ डिस्क में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप देखिएगा दिस डी वाई आई कैन वेरी फ्रॉम 0 टू आर, तो ये 0 से आर तक मैं इसको वेरी कराऊंगा और इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि जैसा अपर हाफ का वैसे ही लोअर हाफ का, दिस इज द पार्ट 1, तो लोअर हाफ इज पार्ट 2, तो इंटू 2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमारा पैटर्न रिजल्ट आ जाएगा। अगली बात यहाँ पे क्या होगी, इफ़ यू सी एक्स और वाई को कैसे रिलेट करेंगे, तो आई विल सी इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये गवर्निंग क्वेश्चन हमारे पास आएगी, हाउ टू रिलेट एक्स एंड वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई कैन फाइंड दिस वैल्यू, डी एम इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू छोटा वॉल्यूम इट इज़ पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ना, ये आ गया। ये तो हो गया डी एम मास अपॉन वॉल्यूम टू वॉल्यूम इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए डी एम एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, इसका इंटीग्रेशन 0 से r तक यू कैन टेक, और फर्दर इसकी वैल्यू को हम लोग लिख पाएंगे। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको लेट अस सी,
इसको मुझे डिलीट करना है। थोड़ा सा मैं शेप को यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा इधर का ये हटा लिया। अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चेक करूंगा। जस्ट सी आई की वैल्यू सेम पेज पे क्यों डेटा को रखा है, थोड़ा ध्यान देना। आई, दिस वैल्यू ऑफ आई कैन राइट इट एज जस्ट, ताकि सेम पेज पे आ जाए, m/4/3 πr³ जस्ट सी। अब मैं कह सकता हूँ 2 and 2 दे गॉट कैंसिल्ड ना, तब देखिएगा 3/4 और आपके पास क्या आ गया, पाई ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड, m/r³ जस्ट सी m/r³ 3/4। और अब आप देखिए x टू द पावर 4 ना इंटू dy, ये टर्म आ गया आपके पास। इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा। 2 तो मैंने कैंसिल कर दिए। अब आप देखिए y आ रहा है, x आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टर्म क्या बताया था, अगर dy में ले जाना है तो आप क्या कर सकते हो, x² को r² माइनस y² का स्क्वायर कर दो, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 0 to r में ले जाऊँगा तो 3/4 m/r³ टाइम्स, और देखिएगा यहाँ पे x r² माइनस y² का होल स्क्वायर इंटू dy का इंटीग्रेशन मैं करूँगा, 3/4 m/r³। अब आप देखिएगा ये टर्म क्या हो गया, r टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2r² y² इंटू dy का इंटीग्रेशन ऐसे होगा। तो क्या वैल्यू आगे देखिए, 3/4 m/r³, तो वैल्यू ऑफ i इज r² r टू द पावर 4 इंटू y प्लस y टू द पावर 5/5 माइनस 2, अब देखिए r² y³/3, ये टर्म आ जाएगा 0 से r तक में। देखो वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू 3/4 m/r³ टाइम्स, अब देखिए 0 to r में r टू द पावर 5 प्लस ये क्या आ गया, r टू द पावर 5/5 माइनस 2 r टू द पावर 5/3, ये देख लो आप, तो ये क्या आ गया 5/5 r/5, तो ये आ गया 6r/5, तो ये टर्म क्या आ गया 3/4 m/r³ टाइम्स, आप देखिए 6r/5, 6 माइनस इसको देखिए 2r टू द पावर 5/3, ये आ गया आपके पास दिस टर्म। फर्दर इफ आई से, तो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15, तो ये टर्म क्या आ जाएगा आपका 3/4 m/r³ टाइम्स, ये देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एलसीएम इज़ 15 ना, एलसीएम इज़ 15, तो 5 3 जा 15, तो 6 3 जा 18 माइनस ये क्या हो गया 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 18 माइनस 10 तो हो गया 8 ना, ये 8 आ गया।
और ये आ गया आपका दिस, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, करेक्ट। ये r का यहाँ पे क्या था आपका r टू पावर 5 था। तो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यूज, i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जस्ट सी 2/5 mr स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2/5 mr स्क्वायर, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो दिस आई हैव डिराइव्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कलेक्शन ऑफ डिस्क लेते हुए सॉल्व किया, और वैल्यू क्या आ रही है 2/5 mr स्क्वायर। तो ये भी एक अप्रोच है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे निकाल सकते हैं, क्या पैटर्न ले रहे हैं, क्या वैल्यूज है। तो 1D 2D 3D ऑल द केसेस आई हैव डिस्कस ना। अब इसी में एक और होता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 r स्क्वायर आता है, वो सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। तो ऑल दैट केसेस वी कैन डू। मैं सॉलिड स्फीयर का तो बता दिया, ऐसे मैं कुछ और केसेस ले रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। कई बार ऐसे भी आ सकता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना। तो सॉलिड सिलेंडर इज लाइक दिस, जस्ट सी ये एक सिलेंडर है, एक पैटर्न मैं बना रहा हूँ, एंड इज रोटेटेड अबाउट द गिवन एक्सिस say with certain omega, length of the cylinder is L and radius is R and mass is M ना। the mass is distributed in the volume, so total mass is M। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ सकता है। इन दिस केस आई विल टेक एनी डिस्क और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग मास ले सकते हैं। तो एक डिस्क ऐसा डिस्क जो होगा यही इसका dm मास होगा। dm मास अरेंजमेंट हियर इज डिस्क, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, आप जानते हो क्या होता है dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, दैट्स ऑल, समझ गए। एंड ऑल द डिस्क आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, हर डिस्क का मास सेम है। तो हम यहाँ पे जो di को लिखेंगे तो di इज dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट कर दो, i हो गया आर स्क्वायर बाई 2, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो गया m, तो ये क्या हो गया m आर स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क हाउ डू वी राइट, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। अब देख रहे हो ये हाइट से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ऑलरेडी मास में इसमें दिया गया रो। तो डिस्क का किसी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो डिस्क का है। तो शेप में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑल द dm मासेस ऑफ डिस्क आर ऑफ आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। द सेम वे अगर मैं हॉलो लेता, हॉलो सिलेंडर फॉर द एक्सिस, उसका पैटर्न भी सेम चलता। हॉलो सिलेंडर इज कलेक्शन ऑफ रिंग्स। हॉलो सिलेंडर मैं करूँगा और एक्सिस ऐसे जा रही है तो इसका एलिमेंट आपका ऐसे आएगा, जस्ट सी hollow cylinder is collection of rings, it is collection of rings, collection of rings, ठीक है। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा आई की वैल्यू वो mr स्क्वायर हो जाएगा। हम कई बार चीज़ों को आसान ऐसे बना भी सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बना रहे हैं, रिजल्ट कैसे लिख पा रहे हैं। तो दिस थिंग वी हैव कि रिंग में क्या हो गया कलेक्शन ऑफ रिंग्स, ऑल द रिंग्स आर ऑफ सेम साइज सेम शेप, इसका साइज भी फर्क नहीं पड़ता, mr स्क्वायर ये आ गया आपका, करेक्ट। तो हमारा मेथड कैसे जा पा रहा है, हम रिजल्ट को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो 1D 2D 3D में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद वंस वी हैव द डिटेल एनालिसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड। एक इसमें आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो वी कैन सी कि कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम अप्लाई करें ना, वो भी चीज़ आएंगी। बट दैट थिंग विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इतना हम लोग किए, ठीक है। थैंक यू, बाय।